میرے بھائیوں، میں آپ کے درمیان میں زیادہ دیر حائل نہیں ہوتا۔ اب میں اپنی بات کو سمیٹتے ہوئے میں آپ کے سامنے ایسی شخصیت کو روبرو کرنا چاہوں گا جو جب متحدہ رنگا ریڈی تھا، یہاں تقریباً علوی نگر سے دور سے لے کر وقار آباد تک یہ بہت بڑا علاقہ رنگا ریڈی کے نام سے جانا جاتا تھا۔ آپ تنہا اس کے صدر تھے اور پورے رنگا ریڈی کا دورہ کر کے آپ نے جمعیت کا تعارف پیش کیا۔ چنانچہ ہمارے سامنے بھی جو جمعیت کا تعارف پیش ہوا وہ حضرت مولانا مقصود احمد طاہر دامت برکاتہم العالیہ کے ذریعے پیش ہوا۔ چنانچہ میں حضرت والا سے ادباً درخواست کروں گا کہ 10 یا 15 منٹ کے لیے آپ ہمارے سامنے آئیں اور اظہار خیال فرمائیں۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا صدق اللہ العظیم۔ عالی قدر صدر محترم جناب مفتی عبدالباقی صاحب اور ملکاج گری کے جنرل سیکرٹری جناب مولوی محمد یونس صاحب اور خازن جناب مولانا محمد امتیاز الدین صاحب اور نائب صدر جناب مولانا محمد عبدالرحمن صاحب رشیدی اور جناب مولانا عبدالوہاب صاحب اور دیگر علماء کرام جو اسٹیج پر جلوہ افروز ہیں، اور انتہائی قابل احترام سامعین، بزرگوں اور دوستوں، پردہ نشین ماں اور بہنیں، اس وقت میں جو اجلاس یہاں پر منعقد ہو رہا ہے مرچل ضلع کے تحت میں جمعیت العلماء ضلع مرچل کے تحت میں یہ منعقد ہو رہا ہے، جو عنوان ہے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم و سیرت اولیاء۔ یہ دو عنوانات کے تحت میں یہ اجلاس منعقد ہو رہا ہے۔ اس کے لیے اس کے ذمہ داروں نے بڑی محنتیں کی ہیں اور بڑی کوششیں کر کے آپ حضرات کو یہاں پر جوڑا ہے۔ پہلے تو میں ان حضرات کو مبارکباد دیتا ہوں کہ ایک زمانہ وہ تھا جو یہاں بڑی کوشش کے باوجود جمعیت کے عنوان سے لوگ جیسا جڑنا ہے ویسا نہیں جڑتے تھے، اور ابھی جیسا کہ مفتی مبشر صاحب جو جمعیت العلماء مرچل کے ترجمان ہیں، انہوں نے بتایا کہ رنگا ریڈی جو ضلع ہے بہت پھیلا ہوا تھا، چندی گڑھ کے بعد سب سے بڑا ضلع تھا یہ، جس کے اندر 28 منڈل تھے۔ وہ متحدہ رنگا ریڈی کی بات کر رہا ہوں، اب جو رنگا ریڈی بنا اس میں بھی تقریباً 28 منڈل ہے، تو آپ اس سے اندازہ کیجئے کہ کتنا بڑا علاقہ تھا۔ جو حیدرآباد کے اطراف کا جتنا علاقہ ہے، سارا کا سارا علاقہ، جس کو پہلے اطراف بلدہ کہا جاتا تھا، رنگا ریڈی اس کا نام رکھا گیا، اس کو ایک ضلع بنایا گیا، اسی کے تحت میں یہ بھی آتا تھا۔ پھر ملکاج گری مرچل یہ ضلع بنا۔ ماشاءاللہ ان علماء کرام نے، ان بزرگوں نے بڑی محنت سے، بڑی کوششوں سے یہاں کی جمعیت کو اور کارکرد بنایا اور فعال بنایا۔ اور یہی نہیں کہ صرف سیرت کے جلسے ہی ہو رہے ہیں، بلکہ محکمہ شرعیہ کو قائم فرمایا، اور پھر ٹیلرنگ سینٹر کا قیام عمل میں آیا قطب اللہ پور منڈل میں، اور بہت سے کئی کام کر رہے ہیں۔ اور ایک نیا کام انہوں نے یہ کیا کہ نشہ بندی سے متعلق
जो जगह जगह और वो जगह जहाँ पर नौजवान खड़े होते हैं उन जगहों पर जाकर नशाबंदी के खिलाफ मुहिम चला रहे हैं और इसकी आज ज़रूरत है। एक बड़ा तबका ऐसा है नौजवानों का जो नशा का आदी हो चुका है और रात तमाम जागने का आदी हुआ है और ऐन फजर से पहले सो जाते हैं और सुबह देर से उठते हैं, फिर देर तक जागते रहते हैं और चौराहों पर चबूतरों पर बैठकर इधर उधर की बातें करते हैं। अब तो उसकी ज़रूरत भी नहीं है, घर में बैठे बैठे आप वीडियोस देख लीजिए, यूट्यूब के अंदर पता नहीं क्या क्या देख रहे हैं, फहश चीज़ें। इस वक्त में हर एक के हाथ में मोबाइल आ गया। पहले ज़माने में ऐसा होता था कि घर के अंदर जब टीवी होता था, टीवी देखते बैठते कभी उसमें ऐसा सीन आता, ऐसा मंजर सामने आता जिसको देखने के बाद आदमी महसूस करता कि ये बेहयाई वाला मंजर है, तो फौरन उसको बंद किया जाता था। और पहले बच्चे अलग होते थे और बच्चियां अलग बैठती थी और बड़े अलग होते थे, लेकिन अब सब अपने अपने जगह मशगूल हो गए। कमरे में बैठकर लड़का क्या कर रहा है किसी को पता नहीं, लड़की अपने कमरे में बैठकर क्या कर रही है किसी को पता नहीं, क्या वीडियोस देख रही है उसका पता नहीं। इस वक्त में जो अग़यार ने और दुश्मनान इस्लाम ने जो तरकीबें की हैं और जिस तरह से मुसलमानों को दीन से, इस्लाम से दूर करने की कोशिशें की है, उसमें सबसे बड़ी कोशिश उनकी ये मोबाइल की है, जिसके ज़रिए से आदमी टीवी को और हर चीज़ को अपने जेब में लेकर चल रहा है। जहां मौका मिला, जिस जगह भी थोड़ा सा वक्त फारिग मिला तो उसके अंदर वो मशगूल हो रहा है। बच्चे भी उसी में मशगूल है, बड़े भी उसी में मशगूल हैं, औरतें भी उसी में मशगूल हैं। दोस्त और बुजुर्गों, ये जो बेहयाई फैल रही है और जो इस वक्त में नौजवान बेराह रवि की तरफ जा रहे हैं, ये सारे इसी की मुसीबत है, इसी मोबाइल की वजह से हो रहा है। हमारे उलमा स्टेजों से, मसाजिद के मेंबरों से पुकार पुकार कर कह रहे हैं, दरमंदाना अपीलें कर रहे हैं कि ऐ मुसलमानों समझ जाओ, आने वाला वक्त बड़ा खराब है, आने वाले वक्त के बारे में कोई कुछ नहीं कह सकता। यहाँ मुसलमान किस तरह रहेंगे आगे चलकर नहीं बता सकते। बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो हमको रोशन मुस्तकबिल दिखा रहे हैं। इंशाअल्लाह ये हालात के आने के बाद जो रोशन मुस्तकबिल भी आएगा, अच्छे हालात भी आएंगे, लेकिन इस वक्त में जो हालात हैं, इन हालात का हमको कैसा मुकाबला करना है इसके लिए हमको बता रहे हैं। इस वक्त में जो लड़कियां घरों के अंदर बैठी हुई हैं, जिनके मांगे सफेद हो रही हैं, जिनकी उम्र 30 साल से 35 साल 40 साल तक हो गई, शादी नहीं हो रही है, वजह सिर्फ इसकी ये है कि वो गरीब हैं, गुर्बत की वजह से, गरीब होने की वजह से उनकी जानिब कोई रिश्ता लेकर नहीं आता। नौजवान जो इस वक्त में जोड़े घोड़े की रकम में और फिर जहेज की लानत में जो मुलव्वस हो चुके हैं, जिसकी वजह से लाखों की तादाद में लड़कियां हैं जो लड़कियां घरों में बैठी हुई हैं और जिसको अल्लाह ने नवाजा है, जिसको अल्लाह ने पैसा दिया है, बड़े बड़े शादी खाने बुक करके बड़े शान और शौकत के साथ वो अपने जो बारात लेकर जा रहे हैं। खुदारा गौर कीजिए, जिस घर के सामने बारात वहां से गुजर रही हो, उस घर के अंदर कोई लड़की है जिसकी उम्र बड़ी हो चुकी है, लेकिन निकाह नहीं हो रहा है, रिश्ता नहीं आ रहा है। अगर वो बारात को देखकर ये कहे कि काश अगर हमारे माँ बाप भी जिंदा होते, हमारे माँ बाप जो यतीम लड़कियां हैं, वो लड़कियां भी घरों में बैठी हुई है, अगर उनकी नजर पड़ जाए, अगर वो अपने दिल ही दिल में कह दे कि या अल्लाह अगर हमारे माँ बाप जिंदा होते और मालदार होते और वो अहले सरबत में उनका शुमार होता तो आज मेरे घर भी अच्छा रिश्ता आता और मैं भी इस तरह से शान और शौकत के साथ मेरा भी रिश्ता होता और मेरे घर के अंदर खुशी आती। लेकिन ये नौजवान जो इस वक्त में जोड़े घोड़े की रकम के चक्कर में जहेज की लानत में मुलविस हुए हैं, जिसकी वजह से बहुत सी लड़कियां घरों में बैठी हुई हैं। अब वो देख रही है कि हमारा रिश्ता तो नहीं हो सकता, इसलिए गैरों के साथ चली जा रही है। मखलूक तालीम की वजह से उनको उसके अंदर वही बताया जा रहा है कि यह कल्चर को खराब किया जाए, इस्लामी तालीमात को खत्म की जाए, यही तालीम उनको दी जा रही है।
तो धीरे धीरे ये आगे बढ़ते जा रहे हैं और उसके बाद नतीजा ये निकल रहा है कि किसी लड़के को देखकर जो उसके हाथ में जन्नत दिखा रहा है, सब्ज बाग दिखाकर उसको ले जा रहा है कि मैं ऐसा करूंगा, फलां करूंगा, ले जाकर पुलिस स्टेशन के अंदर कोर्ट मैरिज हो रही है। उसके बाद फिर थोड़े दिन इस्तेमाल करता है, थोड़े दिन अपने पास रखता है, उसके बाद उसको छोड़ देता है। इसके जिम्मेदार कौन है बताइए? हम मुसलमान इसके जिम्मेदार हैं, नौजवान इसके जिम्मेदार हैं। इस वक्त में अभी मुस्लिम पर्सनल बोर्ड का इजलास हुआ था, निकाह को आसान बनाने वाली मुहिम जो शुरू की गई, उसके अंदर यही चीज बताई गई थी कि निकाह को आसान बनाने के लिए 3 चीजें हैं जो उसके लिए मुआविन हो सकती हैं, जिसकी वजह से निकाह को आसान किया जा सकता है। नंबर 1, औरतें इरादा कर लें कि हम अपने बच्चों का निकाह बिल्कुल सादगी के साथ करेंगे। और बड़े हजरात जो किसी जमाने में मोटी मोटी रकमें लेकर बैठे हुए हैं, जहेज के उन्वान पर घर भर लिया है, तो वो लोग ये अज़्म करें और अज़्म इरादा करके पहल करें कि हम अपने ससुराल में वो रकम लौटाएंगे और जहेज लौटा देंगे। इसका इरादा करके उस जहेज को लौटाएं। और दूसरी चीज, उलमाए किराम अपने जो बच्चों के निकाह कर रहे हैं, बच्चियों के निकाह कर रहे हैं, तो उसको बिल्कुल सादगी के साथ करे। दुनिया कुछ भी कहे उसकी परवाह ना करे, बिल्कुल सादगी के साथ निकाह करना चाहिए, इसका अज़्म इरादा करें। और तीसरी चीज ये है कि उमरा, मालदार तबका, वो तबका जो अल्लाह ने उनको माल से नवाजा है, पैसों से नवाजा है, अल्लाह ताला ने उनको मालो दौलत दी है, तो वह मालो दौलत के नशे में चूर होकर ऐसा खर्च कर रहे हैं जिसका एहसास भी नहीं हो रहा है उनको, और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को और अल्लाह को नाराज करने वाले पूरे काम कर रहे हैं और जरा भी उनको एहसास नहीं है। खुदारा गौर कीजिए, ये अल्लाह के रसूल ने जो चीजें हमको बताई हैं उस पर अमल करने वाले हम ही हैं, आसमान से कोई दूसरी कौम आने वाली नहीं है। अल्लाह के रसूल ने जब लोगों के सामने कहा कि ऐ लोगों, जिस बात का हुक्म दिया जा रहा है उसको मानो और उस पर अमल करो, और ये अमल करने की जरूरत है, प्रैक्टिकल इस चीज को करने की जरूरत है। सिर्फ तकरीरें सुनने से और फिर इज्तिमात में जाने से और फिर महफिलों में बैठने से, सेमिनारों में जाने से और वहां जाकर उनके लेक्चर्स के सुनने से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। जब तक के हम आहद करके, इरादा करके पहल ना करें, अमलन उसको करके न दिखाएं, ये चीज वजूद में नहीं आ सकती। निकाह आसान नहीं हो सकता। इतना बड़ा मजमा इस वक्त में यहाँ पर है, आज आहद करे, इरादा करे कि हम अपने बच्चों के निकाह को आसान बनाएंगे और जोड़े की रकम नहीं लेंगे, जहेज नहीं लेंगे। अपने बच्चे का निकाह करना है तो जहेज का सामान घर में खुद फराहम करेंगे, उसके बाद हम अपने बहू को लेकर आएंगे। और बच्ची को जब देना है तो उस वक्त में भी इस बात का ख्याल रखें, बच्ची को जब देना है तो इस बात का भी ख्याल रखें कि ऐसे लड़कों को दे जो मुतालिबा ना करे, जहेज का लालची ना हो, जो रकम का लालची ना हो, ऐसे आदमी को देने की कोशिश करें। मसाइल तो आते हैं, मसाइल तो हमको झेलना पड़ता है और मसाइल का मुकाबला करना पड़ता है। हम मसाइल का मुकाबला करें, मसाइल को झेलें, लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत की बेटियां जो गैरों के साथ भाग रही हैं उसको बचाने की कोशिश करें, उसकी जिम्मेदारी हम पर पड़ती है। इस वक्त में मेरे उस्ताद मोहतरम हज़रत मौलाना मोहम्मद अब्दुल कवी साहब दामत बरकातुहुम यहाँ पर मौजूद है। मैं मुनासिब नहीं समझता कि आप दो हजरात का वक्त ज्यादा लूं। हजरत के मवाइज और हजरत की नसीहतें और हजरत के जो खिताबात हैं, जो अल्लाह ताला उनसे जो काम ले रहा है वह काबिल रश्क है। हमारे लिए एक बहुत बड़ी नेमत है हजरत का वजूद, और हजरत अल्लाह ताला ने हजरत से जवानी के ज़माने से जो काम ले रहा है वो इस वक्त में यहाँ पर मौजूद है। मैं ज़्यादा वक्त आपका लेना नहीं चाहता, बस आखिर में एक बात की गुजारिश करता हूँ। इस वक्त में जितने लोग यहाँ पर मौजूद हैं, जितने मर्द हजरात मौजूद हैं, जितने ख़वातीन मौजूद हैं, वह आज इरादा करें कि हम आइंदा जिसकी भी शादी करेंगे बड़ी सादगी के साथ करेंगे और ऐसी शादी करेंगे जिसके करने के बाद अल्लाह और उसके रसूल खुश हो। ऐसा इरादा करके बैठे। अल्लाह करे कि हमको ये बात
اور یہ اس چیز پر عمل کرنے کی توفیق ہو۔ میں اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں ہم سب کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔